Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good day, dear students. I am Mrs. Rosina Sharik. I welcome you in my online lesson of English. Dear students, I hope you all will be healthy and fit. May Allah Pak bless you all with health and happiness. Amin. Today's online lesson has been taken from your Oxford Progressive English Book 7. Unit is 5, Danger, and topic is play script. Dear student, play script is a piece of writing written for stage. It includes list of characters. It may be divided into acts and then divided into scenes. Each scene has a description of the setting at the start and then the character's dialogue. Dialogue is set out with the character's name on the left and then a column, and then the dialogue, and the dialogues are written without the speech marks. After this lesson, when you will open your books and you will go through the chapter, and you will come to know that how that play script is written. You can see the character's name at the left, and you will see also that colon is also there, and also no speech marks are there, in such a way that dialogues are written for the play script. Dear students, you can see there is a picture of the novel, the front page of the novel Great Expectation. It is written by Charles Dickens. And Charles Dickens was an English writer and social critic. He created some of the world's best known fictional characters and is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era. Dramatized first chapter of Great Expectation. Dear students, you can see that here it is written dramatized first chapter. What is the meaning of dramatized? Dramatized means that the continuous prose of the original has been turned into a drama or play. Prose को ड्रामा और प्ले में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाती है जब आप किसी चीज़ को प्ले करते हैं, किसी चीज़ को एक्ट करके परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल जब उसका करते हैं तो वो हमें उसका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है. तो ये इसको इस चैप्टर को ड्रामाटाइज्ड किया गया यानी फॉर स्टेज. और ये इसके बाद आपने व्हेन यू विल लिसन ऑल द वीडियो एंड यू विल गो थ्रू द चैप्टर, देन आई विल टेल यू कि आपने यू विल गो सर्च करना है, आपने इसके प्ले है, इसका ड्रामा है, गूगल पे आपको मिल जाएगा, वो आपने सर्च करना है एंड यू मस्ट सी इट. सो यू विल इन्जॉय दैट्स वेरी, बिकॉज यहाँ तो फर्स्ट चैप्टर है ना, तो वो तो नॉवेल है पूरा, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ी तिश्नगी रह जाएगी इसमें आपको. तो इसके बाद ये कंटिन्यूड है, तो उसके बाद you will go through, you will search, and I will also provide that link from where you can see the whole drama. So that chapter of Great Expectation, that novel is published in 1861. It is one of the most famous novels of Charles Dickens. Novel is set in Kent and London in the early to mid 19th century. As I have told you that play script consists of characters and then dialogues. So the main character in this play is Pip, and Pip, it is the story of Pip, and he is an orphan boy who lived with his disagreeable sister and her sweet nature husband Joe. Now Mr. Joe, here you can see the picture of Mr. Joe. Mr. Joe is brother-in-law of Pip. Mrs. Joe is his sister,
एंड मिसेस जो गुस्से में रहती थी ऑल द टाइम, बट मिस्टर जो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन and he is a blacksmith by profession. And the other picture you can see is Abel Magwitch, that is a convict prisoner, escaped prisoner, ये भागा हुआ मुजरिम था। एंड ये जो चैप्टर है ये इसी ही के बारे में है। इसके अंदर पिप और दैट एबल मैकविच जो हैं, जो ये प्रिजनर है, ये इसी के बारे में वो ये चैप्टर है, इसी को ड्रामाटाइज़ किया गया है। सी दिस पिक्चर, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ मतलब कितने गुस्से में उसकी सिस्टर रहती है सारा टाइम, और हाउ नाइस हिज ब्रदर इन लॉ विद हिम। Now I will tell you the summary of this chapter, that what happened in that chapter, कौन सा सीन ड्रामाटाइज़ किया गया है। इस फर्स्ट जो सीन है वो कैसे ड्रामाटाइज़ किया गया है, तो उसकी समरी मैं आपको बताती हूँ। एज एन infant Philip Pirrip. Philip Pirrip is the full name of Pip. So as an infant, Philip Pirrip was unable to pronounce either his first name or his last. Doing his best, he called himself Pip, क्योंकि वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, उसका नाम बहुत बड़ा था और इस वजह से उसने अपने आप को सिर्फ पिप कहलवाना शुरू कर दिया। Now Pip, a young boy, is an orphan living in his sister's house in the marshes country in southeast England. One evening, Pip sits in the isolated village churchyard, staring at his parents and three little brothers' tombstones. As I told you that Pip is an orphan, और उसके ना फादर ना मदर दोनों की डेथ हो चुकी थी, और उसके साथ ही उसके 3 भाइयों की भी डेथ हो चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा उदास रहता था। तो वन डे वो जहाँ रहता था, जहाँ वो ग्रेवयार्ड था, वो उसके घर से तकरीबन 1 माइल का डिस्टेंस था, तो वो अक्सर वहाँ जाता रहता था। तो वन इवनिंग पिप सिट्स इन द आइसोलेटेड विलेज चर्चयार्ड में, मतलब चर्चयार्ड में वो में उसकी ग्रेव स्टोन्स थी, उसके दोनों पेरेंट्स की, फादर की, मदर की एंड उसके 3 भाइयों की। वो वहाँ बैठा उनको देख रहा था। सडनली अ हॉरिफिक मैन ग्रॉलिंग ड्रेस्ड इन रैग्स एंड विद हिज लेग्स इन चेन, उसकी अचानक एक अजीब सा आदमी उसके पास आता है फटे पुराने कपड़ों में, और उसकी लेग में चेन थी, शक्ल थी। स्प्रिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द ग्रेव स्टोन्स, कब्रों के पीछे से निकल के आता है और उसको स्नैच कर लेता है एंड स्नैचेस पिप को पकड़ लेता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन सी पिप एंड दीज आर द ग्रेव स्टोन, ये उस कब्र का दिखाया हुआ है। देन व्हाट, फिर वो देन दैट एस्केप्ड कन्विक्ट क्वेश्चंस पिप हार्शली अबाउट हिज फैमिली एंड व्हेन ही कम्स टू नो, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है उसकी फ़ैमिली के बारे में और डराता है उसको, उसको बहुत ज़्यादा थ्रेटन करता है। जब उसको ये पता लगता है दैट हिज ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो इज़ अ ब्लैक स्मिथ, जब उसको ये पता लगता है कि उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो कोई ब्लैक स्मिथ हैं, यानी वो लोहे की चीज़ें बनाते हैं, तो वो ही इज़ सो मच, मतलब हिज आइज़ वाइडन्स, वो बहुत खुश होता है। ही फील्स एक्साइटेड, क्यों होता है? ही डिमांड्स दैट पिक ब्रिंग हिम फूड एंड फाइल with which he can saw away his leg iron. वो इसलिए खुश हो जाता है कि उसको ये पता लग जाता है कि उसको अपनी, जाहिर है वो एक भागा हुआ कैदी होता है, उसको उसके पाँव के अंदर बेड़ियाँ होती हैं, शक्ल होती हैं, तो वो उसको काटने के लिए उसको फाइलर की ज़रूरत होती है। तो और दूसरी बात ये कि वो भूखा होता है, हंग्री होता है, तो वो उससे डिमांड करता है पिप से कि वो उसके लिए घर जाए, अदरवाइज़ वो
क्या करेगा कि वो उसकी लीवर और हार्ट निकाल देगा उसकी बॉडी से, वो उसको इतना ज़्यादा खौफज़दा करता है। व्हेन यू विल रीड दिस चैप्टर यू विल कम टू नो, बिकॉज मैंने तो इसको समराइज़ कर दिया है ना, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़े से मुश्किल वर्ड्स हैं, वो मैंने PDF में उन नोट्स के अंदर उनको सबके जो है ना मीनिंग बता दिए हैं। फिर देन व्हेन यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स, तो वो और ज़्यादा उसकी कॉम्प्रीहेंशन से आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्वेश्चन आंसर से हमें बहुत सारा जो है ना चैप्टर का अंदाज़ा हो जाता है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्शन हो जाएगी उसके बारे में। सो दैट इज़ ओनली द फर्स्ट चैप्टर। और आपने क्या करना है कि इसको आपने सर्च करना है, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड मीन कि ये अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, और आगे अगर आपको ये प्ले स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो यू विल डेफिनेटली सर्च इट आउट। एक्टिविटी इज़ सर्च द नॉवल फ्रॉम गूगल एंड वॉच इट्स वीडियो। आपने क्या करना है, नॉवल गूगल से सर्च करना है और उसकी वीडियो देखनी है। राइट अ वेरी शॉर्ट समरी ऑफ प्ले और मेन आइडिया। आपने बहुत छोटी सी समरी लिखनी है। अब ये तो फर्स्ट चैप्टर की समरी, वो तो मैंने बता दिया आपको। आपने क्या करना है, पूरा नॉवल पढ़ना है और बहुत छोटी सी उसकी समरी लिखनी है या मेन आइडिया लिखना है उसका। सम मोर करेक्टर्स आर ऑल्सो देयर। इसमें आपको जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो इसमें और भी करेक्टर्स हैं, तो आपने उनके नेम्स मुझे लिख कर भेजने हैं और बताना है कि हाउ दे आर रिलेटेड टू पेप। आई होप दैट यू विल फाइंड this play script interesting. I will wait for your feedback. Thank you. God bless you, dear students. Ameen. Allah Hafiz.